डोंट कंसिडर देम एज अ डेड बॉडीज, दे आर लाइफ। ये जिंदा है जिन्होंने अपने सेक्रीफाइस किए थे। कि कभी आप इमेजिन करो जब आप बूढ़े हो जाओगे कि अपनी बॉडी दे पाओगे किसी कहीं पे? आप खुद सोचिए, आपको सोच के डर लगेगा कि हम अपनी बॉडी बच्चों किसी मेडिकल कॉलेज में दान करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। Cadaver is not a mere dead body. It is alive in the hearts of students and renowned successful doctors who have dissected it for study purposes, and in the hearts of professors who with their courtesy and immense knowledge are creating experts by serving their students. The difference between life and death is just of a breath. And today, I am here to honor and bestow my sincere thanks to people who even after their last breath are ready to give so many lives a new meaning. You know what? Every normal demise has condolences. Everybody gets some sympathy, but there are really few who get more gratitude than just condolences. And you all are among them. गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं मैं। गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं मैं। तुम मुझे मुर्दा समझ रहे हो, अभी मरा नहीं हूं मैं। Now I request Principal Sir and other dignitaries to please come forward for lighting of the lamp. Now I request Dr. Alka Nagar to please welcome our principal sir with a flower bunch. I request Dr. Bibi to welcome Shri Manoj Singhar ji and his wife, better half, Mrs. Madhvi Singhar ji. I request Dr. Aarti to please welcome our senior professor, Dr. Pramod Kumar. I met few of your boys colleagues yesterday in the hostel, and when I met, I felt that they are quite relaxed. Some amount of anxiety will be there because you have left your homes, so you have come to new place, and this is a human nature. You cannot change it, because when you come to new place, you are going to meet new people, and you are going to meet several different type of personalities. Some of them may be kind to you, some of them may not be. So you need to learn to adjust. You know what is the problem with the younger generation, that I have undergone few incidences. You people are very brittle in the sense that your parents have pampered you. Not all, जो गांव से आए हैं वो लोग नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे even if I look at my children also, we have pampered them a lot. ज़्यादा एजुकेटेड होने का एक नुकसान ये है कि हम अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं। तो शायद what I feel the current generation right now is over pampered generation, not all. हो सकता है जैसे गाँव में पले बड़े वो तो खैर मजबूत होते हैं, लेकिन जो शहरों में घरों के अंदर कैद रहते हैं तो वो ज़्यादातर इतने रफ एंड टफ नहीं बन पाते, एंड दे बिकम वेरी सेंसिटिव. सो वन ऑफ द बेसिक क्रक्स व्हेन यू एंटर अ मेडिकल कॉलेज, आई विल जस्ट एडवाइस यू, हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड मी? सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा तो है ना? नहीं, मैं आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश ना, कोई आपको दिक्कत तो नहीं?
तो आप ना थोड़ा सा जस्ट यू लीव योर सेंसिटिविटी बिहाइंड. हाउ बिफोर दिस I joined Kanpur Medical College in year 2003. Before this, I was the principal of during Corona period. For 1.5 years, I went to Agra Medical College, SN Medical College Agra. From there, I did my MBBS also. And when first day I entered the classroom, after my lecture was finished, few of my senior batch people, they entered inside and they locked the doors. Then they started beating us like anything. And the show didn't end up there. What happened when they took us to a private room outside the premises of the college, and there were 2 floors. I was standing on the first floor. My other friends were standing on the second floor, ground floor. I remember I received 70 slaps. After that, I stopped counting. And I was amongst the people who were beaten least. And 1 or 2 of my colleagues, they left the medical college just because they were beaten so severely. Such was the time at that time. Right now, you don't get even single scolding. Ragging is absolutely bad in our institute. So what I am saying, why I am narrating my incidents, I am not saying that ragging is a good thing. I am saying ragging is a very bad thing. But you should also increase your threshold for your batchmates. आपको अपने batchmates के साथ में और अपने seniors के साथ में अपना threshold बढ़ाना पड़ेगा. आप बच्चे नहीं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, सिलेक्ट होना है. हाँ, पढ़ाई उतनी शिद्दत से करनी पड़ेगी बल्कि ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में मौज मस्ती जो एक सीमाओं के अंदर हो. मतलब मौज मस्ती की अगर सीमाएं तोड़ देंगे तो सामाजिक सीमाएं तो वो कष्टदायक होगा, ठीक है. लेकिन आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना, एज अ रूम पार्टनर, एक दूसरे को बैच में खड़े होना. रिसेंटली वी हैड अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. तुम लोग के आने से पहले की बात है. We lost a girl because of encephalitis. She had a influenza encephalitis, which is a very rare complication. हम सब लोगों ने बहुत प्रयास भी किया. 15-16 दिन हम लोग लगे रहे और लाखों रुपए हम लोगों ने अपने तरफ से खर्च भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट सेव दैट गर्ल. तो कई बार ऐसे बुरे चीज़ें भी हो जाती हैं. लेकिन बट आई हैव सीन द यूनिटी ऑफ होल ऑफ योर N2 पैरा बैच वाज वेरी गुड. मतलब सारे के सारे बच्चों ने उस लड़की की इतनी सेवा की कि मेरे को नहीं लगता उसके माँ बाप या भाई बहन कोई किसी ने सेवा की. सो दिस इज द टाइप ऑफ द बॉन्ड यू डेवलप इन दिस कॉलेज, है ना. दिस इज व्हाट वी आर मेंट फॉर एंड मेडिकोज आर नोन फॉर दिस. जब व्हाई आई वाज सक्सेसफुल इन आगरा वाज जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि वहाँ मेरे सीनियर और जूनियर थे. कोविड काल में मुझे ऐसे समय भेजा गया था. इट वॉज द वर्स्ट टाइम टू गो टू बिकम अ प्रिंसिपल. मेरे को प्रिंसिपल का ABCD भी नहीं आता था तब. लेकिन व्हाई आई वॉज एबल टू फाइट दैट बैटल एंड विन दैट बैटल, द रीजन वॉज देयर दैट आई हैड वेरी गुड सीनियर्स, बैचमेट्स एंड जूनियर्स विद मी. तो ये बॉन्ड जो आपके बैच का है, दैट विल कैरी ऑन थ्रू आउट योर लाइफ. ये आपके माथे पे Q2 पैरा लग गया. आई कॉल दिस एज ए क्यूट पैरा, ठीक है ना. आई थिंक होप you will sustain to my wishes. So this cute para, yani Q2 para, so you will not disgrace this institution. आप लोग इंस्टीट्यूशन का सम्मान करेंगे, यहाँ के जो अनुशासन है उसका सम्मान करेंगे. बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे जो आपको गलत राह पे ले जाने की कोशिश करेंगे. डोंट गेट कैरिड आउट बाय दीज पीपल. सो मेरा एज अ प्रिंसिपल से हम्बल रिक्वेस्ट कि, और दूसरी बात है कोई परेशान कर रहा है, हमने पूरी आपको वो दे रखी है जो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पूरी है उसमें, इंक्लूडिंग मी माई नंबर ऑल्सो. आप दैट डोंट. यस्टरडे आई वेंट टू हॉस्टल, तो क्या हुआ, एक लड़का को कोई शायद फ़ोन कॉल आया, तो ये सक्षम वेयर आर यू, वही मेरा. तो ही इज़ अ गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन ही थोड़ा सा पैनिक करके इसने इमीडिएटली कॉल्ड हिज फादर. लेकिन आई एम टेलिंग यू बैठ जाओ सक्षम, चलो, है ना. सो ये थोड़ा सा पैनिक कर गया था. तो आपको कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो, डोंट, पहली बात तो फ़ोन क्यों उठा रहे भाई,
अनजान आदमी का क्यों फोन उठा रहे हो आप? यू नीड नॉट टू पिक अप अ फोन। आपका चाहे सीनियर कहता रहे चाहे कुछ कहता रहे, यहाँ पे कोई एचओडी और प्रिंसिपल से सीनियर कोई नहीं है, ठीक है? तो याद रखिए आप किसी का फोन कॉल नहीं उठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई आपको थ्रेटन करता है तो हम लोग हैं, हमने आपको मॉनिटर्स दे दिए, सबके पास मॉनिटर्स मिल गए सबको? यस और नो? से लाउडली। और आपको एक्चुअली मैंने मॉनिटर इसलिए हम लोगों ने ये बनाया कि कई बार ना टीचर्स से थोड़ा फासला होता है, आप लोग थोड़ा डरते हो टीचर्स से हम शेयर नहीं करेंगे, तो आप इनसे शेयर कर सकते हो। ये लोग हमको आपके प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। आपको इनको खाली रैगिंग से नहीं, और भी जो प्रॉब्लम है, मान लो आपको लग रहा है खाने से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या आपको रहने से संबंधित प्रॉब्लम है, अगर हमारे बस में होगा हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखिए। और आज का दिन बड़ा शुभ है। हमारे साथ में एचओडी एनाटॉमी, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद डॉक्टर प्रमोद, ठीक है? ये दो को तो मैं बहुत पुराने समय से जानता हूँ और इनके बारे में मेरे को लगता नहीं है इनसे बड़े टीचर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई होगा एनाटॉमी का। सो दे आर द बेस्ट टीचर्स along with, I am not saying other teachers are also very good, but as far as seniority is concerned, इनके कद की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी जो स्ट्रक्चर में at the level of professor, so you have got very good teachers। संसाधन में भले ही हम थोड़ा सा पीछे हों, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, 1 आध साल में पूरे संसाधन हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको एनाटॉमी टेबल भी मिल जाए, दैट इज़ आर्टिफिशियल, जो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, 3D रिकन्स्ट्रक्शन, तो वो लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और बाकी सारा आपका समर्स तक शायद इसको एयर कंडीशन भी कर देंगे। तो लेकिन एक्चुअली मैं भी, मेरे को आए बहुत कम समय हुआ है, 1.5 साल ही हुआ है, तो बट आई एम ट्राइंग टू चेंज द लुक ऑफ दिस कॉलेज, और आई वांट दैट दिस कॉलेज शुड गो टू द एपेक्स। जब तक तुम लोग फाइनल ईयर में पहुँचो, ये लोग इस बात से याद करें। अभी जानते हो क्या रैंक इस कॉलेज का ऑल ओवर इंडिया में? कितना? 89 रैंक है। सो आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू 8th रैंक, है ना? मैं चाहता हूँ कि इसको 8th रैंक पे हम लोग ले जाएं। बट दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आई गेट अ सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। भाई स्टूडेंट है, वो अब जा करके बाहर जाके तोड़फोड़ कर दी, मारपीट कराए, तो उससे कॉलेज की छवि बड़ी खराब होती है ना? क्योंकि अभी तुम लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, 1 आध साल बाद तुम भी ऐसे हो जाओगे, है ना, अपने सीनियर्स की तरह। खैर, हमने डिसिप्लिन के लिए हमारे पास में बहुत कड़े नियम हैं, ठीक है? तो हम लोग विल टेक अवर ओन स्टेप्स, बट आई फ्रॉम वट, बिकॉज यू आर क्वाइट न्यू, और अभी जो मैं बोलूँगा तुम लोग ग्रहण भी करोगे, बाद में चल के थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो जाते हो, तो आप सब लोग अनुशासन बनाए रखेंगे, खूब मन लगा के पढ़िए। अटेंडेंस इज मैंडेटरी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? उसका क्योंकि आपके सीनियर पैरा वालों ने कुछ ने गलती की है और उनको उनके किए का दंड हम देने जा रहे हैं। उनको हमने एक मौका दिया, उसको उन्होंने नहीं फॉलो किया, तो अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो जो लोग नहीं आ सकते क्लासेस में, उनके लिए कॉलेज नहीं है। और अब एनएमसी ने बहुत स्ट्रिक्ट नियम बना दिए हैं, 4 अटेम्प्ट एंड यू आर गॉन, मतलब चौथे अटेम्प्ट के बाद में 5वां अटेम्प्ट नहीं मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं, ये पूरे 5 साल की 4 अटेम्प्ट है, इफ आई एम राइट, ये पूरे 5 साल के 4 अटेम्प्ट हैं। सो टेक इट एज अ वार्निंग कि भाई आपके लिए क्लास में आना कितना मैंडेटरी है, अटेंडेंस कितनी मैंडेटरी है। आने वाले टाइम पे एनएमसी ने जो आपकी अटेंडेंस है उसको बायोमेट्रिक से अपने यहाँ जोड़ लिया, तो दे विल बी लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरी मेडिकल कॉलेज, ईच एंड एवरी मेडिकल कॉलेज। तो हर बच्चे पे, उनके हर क्लास में, हर पैरा पे, हर बैच पे उनकी नज़र रहेगी। तो इसलिए आप लोग इसको कैजुअल मत ले लीजिए कि भाई अभी तो आप घुसे हो एमबीबीएस में, अभी आपको कुछ नहीं आता, आप डॉक्टर नहीं बन गए हो, अभी जस्ट शुरुआत है डॉक्टर बनने की, अभी ये पहला पड़ाव है, ठीक है? तो अभी मेहनत जी लगा करके पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो हमारे युग ददी जी के लीडर हैं, हमारे यहाँ सेंगर साहब, आप आज जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कैडर, यू नो व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ कॉलेज इज दैट टू गेट द कैडवर्स। कैडवर्स डोंट कंसिडर देम एज अ डेड बॉडीज, दे आर लाइफ, ये जिंदा हैं जिन्होंने अपने सेक्रीफाइस किए थे। कि कभी आप इमेजिन करो जब आप बूढ़े हो जाओगे कि अपनी बॉडी दे पाओगे किसी कहीं पे? आप खुद सोचिए, आपको सोच के डर लगेगा कि हम अपनी बॉडी बच्चों किसी मेडिकल कॉलेज में दान कर दें एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना? अभी आप एकदम यू विल गेट रिपल्स विद दिस आइडिया। लेकिन ये सब वो लोग हैं
इन्होंने सेंगर साहब के और मैडम के, माधवी मैडम, इन सब के बहुत सराहनीय कार्य की वजह से आज आप लोग सीखने के लिए आपको बॉडीज मिल रही। और हमारा कॉलेज उन गिने चुने कॉलेजों में है जिनके पास में सरप्लस में बॉडी है। सारा क्रेडिट सेंगर साहब को जाता है। और आप देखो, इनको कुछ यहाँ पे बॉडी सर्व करने से कुछ ही नहीं मिल रहा है, लेकिन जस्ट एक ये विद्या का दान करने के लिए आते हैं हमारे पास में। ये इसके लिए ना कोई इंसेंटिव है इनके पास में, ना कुछ है, जस्ट ही इज ट्राइंग टू सर्व। तो मैं आज ये जो कैडवरिक ओथ है उसका पर्पस ये बेटा कि हम लोग, मेरे को याद है कि हम लोग कैडवर्स के बगल में खड़े होकर के हंसते थे या कुछ जोक्स क्रैक करते थे, तो हमारे टीचर्स आकर के बोला करते थे, बेटे ठीक है लेकिन कभी अपनी इनकी जगह अपने को रख करके देखो तो तुम्हें पता लगेगा। तो तब हमको वाकई में बाद में महसूस हुआ, आज मैं प्रिंसिपल होकर के मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ खड़े जितने भी लोग हैं या यहाँ पे जीवित जितने भी हैं उनसे ज़्यादा सम्मानीय ये लोग हैं, क्योंकि ये इनकी देह अपनी बॉडी दे देना दूसरे को सीखने के लिए। ज़्यादा की बॉडी या तो मिट्टी में मिल जाती है या दफन हो जाती है, लेकिन ये लोगों ने तो अपनी पूरी बॉडी दे, मतलब इनकी बॉडी है जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं सो एज टू टीच यू। इससे तुम लोग सैकड़ों लोगों की जान बचाओगे आने वाले समय में। तो इसीलिए कैडवरिक ओथ का बेसिक पर्पस ये है कि वी शुड रिस्पेक्ट दीज बॉडीज इन अ डिग्निफाइड वे एज योर ओन फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तुम इमेजिन करो इनकी जगह तुम्हारे फैमिली मेम्बर होते हैं, तुम उनको कैसे रिगार्ड करते हैं। सो दैट्स वाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम, है ना, दैट इज द पर्पस ऑफ द कैडवरिक ओथ। आई एम कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू फॉर दिस कैडवरिक ओथ एंड cute para is with me and madam is with me and all respected faculty members are with me. So heartiest congratulations for joining such a good institute, but I expect that you will respect whatever is being taught to you, including the thank you so much. Please remain standing for the cadaveric oath. We have already distributed the cadaveric oath to you. Please pull your hand forward. Please pull your hand forward in the pledging posture, and as I speak, please follow my words. Okay? I take your name. Student of MBBS first year at Department of Anatomy, GSVM Medical College, Kanpur. Solemnly pledge to respect the cadaver and treat this once living person with compassion and dignity as I use it to further my professional goals. To show due respect and gratitude towards this cadaver, who will always remain my first teacher, who lived for others but died for us. To pay gratitude towards the next kin of the donors for their endeavors in serving the society selflessly even after death. To consider this as the best example of living after death. To always emulate this act of donor to provide quality health service to society and to enhance the lives of all mankind. I pay my homage to the souls of these cadavers. Thanks. मैं आप छात्रों को ये फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो कैडेवर्स हैं इनको आप ये बहुत ही जतन से प्राप्त होते हैं, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होते हैं, और इसके लिए पूरा क्रेडिट हम श्री सेंगर जी को देते हैं, जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कठिन, इन्होंने लोगों ने प्रेरणा, इन्होंने ये पूरा
क्या कहना चाहिए कि पूरी एक ड्राइव चलाई है, जिससे कि लोगों को, कानपुर के लोगों को और आसपास के एरिया के लोगों को इन्होंने प्रेरित किया कि ये देहदान में आगे आएँ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं होती हैं, जिसमें पहले लोग बहुत डरा करते थे कि हम बॉडीज़ क्यों डोनेट करें, लेकिन इन्होंने सारी भ्रांतियों को दूर हटाकर एक किसी सामान्य इंसान की जो एक चली आ रही कुरीति है उसको दूर हटाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग एक दूसरे की मानसिकता को चेंज नहीं कर पाते, और एक सदियों से चली आ रही एक भ्रांति को दूर करना निश्चित ही बहुत ही कठिन कार्य होता है, जो कि इन्होंने लिया बिना किसी स्वार्थ के, अपनी सहजता से इन्होंने लिया। और मैडम और सर दोनों लोग तब से कई वर्षों से इस कार्यक्रम को चलाते आ रहे हैं। मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सेना जी यहाँ आए और अपने 2 वचन, आशीर्वचन हमारे छात्रों के बोले। बैठ जाइए हम लोग, बैठ जाइए। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, जो अपने काम के लिए और अपनी विनम्रता दोनों के लिए जाने जाते हैं, आदरणीय सुनीति मैम जी, जो पूरे काम को निष्ठा से करने के लिए और जिनके पास लंबा अनुभव है इस पूरे कार्य का, साथ में डॉक्टर प्रमोद सर हैं जो बहुत दिनों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप सारे लोग जो यहाँ सहयोगी हैं, और आप बच्चे जो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके बीच में जो शरीर रखे हुए हैं, ये संभ्रांत परिवारों के लोगों के शरीर हैं, और जिन्होंने ये सोचा था कि उनके मरने के बाद उनका गंगा तट पर कोई कर्मकांड किया जाएगा, उनको जलाया जाएगा सम्मान के साथ। लेकिन जब हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया तो आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें 80 और 90 वर्ष की महिलाएं, जिनके बारे में सोचा जाता है कि ये बहुत रूढ़िवादी होती हैं और इनका सोच बदलना मुश्किल है, अभी पिछले दिनों एक 90 वर्ष की महिला ने अपने मरने के 2 दिन पहले मुझको बुलाकर अपने परिवार के लोगों को कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर मेडिकल कॉलेज जरूर जाना चाहिए। रात को 2 बजे जब उनका निधन हुआ तो बेटे ने मुझको सूचना दी और कहा कि हम लोगों का तो मन नहीं था, लेकिन अम्मा जी इतनी बार कह चुकी हैं कि अब हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि इनको हम जलाएं, लिहाजा इनका शरीर हम दान करेंगे। ये महिला 90 साल की, आप सोच सकते हैं कब उसका जन्म हुआ होगा। उस ज़माने में तो ये ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं देहदान का। हिंदू धर्म में मरने के बाद उस व्यक्ति का चितारोहण न हो, ये तो कल्पना नहीं हो सकती, सोच ही नहीं सकते हम लोग। लेकिन ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके सुबह शाम दोनों समय हवन होता है। इतने कर्मकांडी परिवारों से और महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे आई हैं। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। लोग कहते हैं महिलाएं बड़ी पिछड़ी हैं, बड़ा पीछे हैं, इनका सोच बड़ा दकियानूसी है, लेकिन महिलाएं ही, और वो ऐसी महिलाएं जो अंगूठा छाप थी, जिन्होंने अपने फॉर्म में अंगूठे लगाए हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सोचते हैं, वो ज़्यादा चिंतन करते हैं, वो ज़्यादा सोच विचार में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा बहस में पढ़ते हैं, बहुत सारी बहस करते हैं, बहुत सारी बातें पूछते हैं। मरने के बाद हमारा क्या होगा, मरने के बाद अगर हम नहीं जलाए जाएंगे तो क्या हम भूत हो जाएंगे। इस तरह के लोगों के मन में संकल्पनाएं हैं। लेकिन जब पहला शरीर हम लोग का लेकर आए वहाँ से 20 अगस्त 2006 को कानपुर देहात में एक डेरापुर क्षेत्र है, वहाँ पर एक 21 साल के बहुआ दीक्षित नामक लड़के का देहांत हुआ था। तो परिवार ने हमें सूचना दी और कहा आप इनको देहदान का संकल्प है तो आप इनको ले जा सकते हैं। हम लोग मेडिकल कॉलेज से गाड़ी लेकर गए यहाँ से, मैं, मेरे एक मित्र, हम 2 ही लोग पहुँचे वहाँ। तो गाँव वालों ने हम लोगों को घेर लिया। उन्होंने कहा ये लोग शरीर बेचने वाले लोग हैं, ये इसकी किडनी बेच देंगे, इसकी आंखें बेच, जबकि उनको डेथ हुए 12 घंटे से ऊपर हो गए थे। लेकिन उन लोगों के मन में भ्रम था कि ये लोग शायद शरीर, क्योंकि देहदान जैसा कोई विचार कभी था नहीं, तो उन्होंने कहा ये लोग शरीर बेचने वाले हैं। और वो लोग लाठियाँ लेकर वहाँ पर इकट्ठे हो गए, सारे लोग, ग्राम प्रधान भी आ गए, कोई किसी की सुन नहीं रहा था। और हम 2 लोग वहाँ घिरे हुए थे भीड़ में। तो मैंने अपने मित्र से कहा, मैंने कहा ऐसा लगता है कि हम लोग 1 बॉडी लेने आए हैं, लेकिन यहाँ से 3 बॉडी जाएंगी ऐसा लगता है, क्योंकि हम 2 को भी मार देंगे। तो हमारे मित्र रंजीत सिंह जो आज तक के ब्यूरो चीफ हैं, उस समय आज तक चैनल शुरू हुआ था, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा हम लोगों को बचाओ, शरीर मिले ना मिले हम तो वापस जाएं।
तो उन्होंने वहाँ के संबंधित थाने को फ़ोन किया तो पुलिस आ गई, काफ़ी फोर्स आ गई 2 थानों की। तब उन्होंने किसी तरह वो शरीर लाने दिया हमको यहाँ। वो 20 अगस्त 2006 का दिन था जब GSVM को वो शरीर यहाँ लाकर हमने दान किया। और इसके बाद फिर लगातार बहुत सारे, अब 249 बॉडी हम दे चुके हैं और पूरे प्रदेश में। ये उतना आसान नहीं होता है। जब किसी का निधन होता है तो परिवार के लोग तैयार होते हैं। दूर के रिश्ते के कोई चाचा के, फूफा के, मामा आके कहने लगते हैं हम तो नहीं देंगे, ये तो भूत हो जाएंगे। अब वो रिश्तेदार बहुत दूर का है, उसका कुछ लेना देना भी नहीं है, कभी वो आया भी नहीं वहाँ पर, आगे भी कभी नहीं आएगा, लेकिन टांग सबसे ज़्यादा वही फंसाएगा। और भीड़ की मानसिकता ये होती है कि जब कोई एक व्यक्ति कोई बात कह देता है तो सारे लोग उसी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। भीड़ लगी हो, कहीं कोई झगड़ा हो रहा हो और आप जोर से बोल दीजिए मारो, जोर से बोल दीजिए, तो सब मारने लगेगा उसको, ये नहीं पूछेंगे किस लिए मारना है। एक भीड़ की मानसिकता होती है। तो जब लोग कहते हैं कि नहीं, एक आदमी ने बोल दिया ये भूत हो जाते हैं, इनकी आंखें ले जाएंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा हो जाएंगे और ये हो जाएगा, तो इससे क्या होता है कि भ्रम फैलता है। उस भ्रम के जाल को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैंने और मेरी पत्नी ने 1000 से ज़्यादा मीटिंग्स की हैं, 1000 से ज़्यादा, और ऐसी जगहों पर की है। हमने शमशान घाट में भी की हैं, जहाँ लोगों को जलाया जाता है, वहाँ भी हमने मीटिंग्स की हैं, वहाँ भी हमने सभाएँ की हैं और अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया है वहाँ पर। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं शमशान घाट में कोई कार्यक्रम हो। शमशान में संकीर्तन किए हैं हमने, आप सोच भी नहीं सकते हैं, जहाँ चिताएँ जल रही हों दोनों तरफ और वहाँ बीच में ढोल मजीरा बज रहा हो, ऐसा आप नहीं सोच सकते। हमने किया है, इसलिए किया है कि ये मान्यता टूट जानी चाहिए कि शरीर दान करने से कोई भूत बन जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। जिन सैनिकों के शरीर दब जाते हैं और वर्षों बाद मिलते हैं, उनके भी कर्मकांड किए जाते हैं। शास्त्र में उसका विधान है, उसका तरीका है और हमने उसको किया है। जिन लोगों का शरीर हम दान करते हैं उनको वर्ष में एक बार हम पिंडदान उनका करते हैं। गंगा तट पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सबको बुलाते हैं, सारी व्यवस्था हम करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। उनका तर्पण करते हैं, उनको जल देते हैं, उनके सारे मंत्र पाठ करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिसका शरीर हमने यहाँ दिया है उसके आगे के कर्मकांड कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम जुड़े हैं उससे, कोई ना कोई तो नाता हमारा रहा होगा जो उनके शरीर को हम कंधे पर लेकर आते हैं। किसी जन्म का कोई नाता होगा, तभी तो एक अनजान व्यक्ति के शरीर को कंधे पर रखकर हम यहाँ 3 मंजिल ऊपर आते हैं। वो हमारा कभी लगता नहीं था कुछ, लेकिन उसके बाद वो हमसे जुड़ जाता है। तो ये जो देहदान है ना, ये बड़ा कठिन काम है। जिन पर आप काम कर रहे हैं ना, ये शरीर बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं, बड़ी मेहनत से प्राप्त हुए हैं। तो इनको प्रणाम करके ही आप काम आगे करें, क्योंकि इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। शरीर नहीं होंगे तो आपको पढ़ने में कठिनाई होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, ये तो मैं कहता नहीं, क्योंकि इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज जब हम पहला शरीर लेके पहुँचे तो वहाँ 11 वर्ष से कोई शरीर नहीं था। और ये बात हम मीडिया को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन मीडिया ऊपर चला गया DH में। वहाँ पर एक कर्मचारी था, वो अंडरवियर बनियान पहने सफाई कर रहा था। प्रेस वालों ने उसको घेर लिया, उसने जल्दी से अपना सफ़ेद कोट पहना, ऊपर से नीचे अंडरवियर, और कोट पहन के वो धड़ाधड़ बाइट देने लगा। जब तक हम पहुँचे तब तक उसने सारा बंडा फोड़ दिया। उसने कहा यहाँ 11 वर्ष से कोई शरीर नहीं है। तो ऐसे भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शरीर नहीं होगा तो पढ़ नहीं पाएंगे, कोई ना कोई व्यवस्था प्रिंसिपल साहब करेंगे, मैम करेंगी, क्योंकि पहले भी कभी ऐसा हुआ होगा, तो कुछ ना कुछ इंतजाम। लेकिन शरीर से पढ़ने के बाद आप एक कुशल चिकित्सक बनेंगे, आप एक अच्छे चिकित्सक बनेंगे। जैसा प्रिंसिपल साहब भी प्लान कर रहे हैं कि और भी लोग सीखें इस पर आके, ये बड़ी अच्छी सोच है। क्योंकि अब स्टिचिंग के तरीके बदल गए, तमाम तरीके बदल गए, सर्जरी के तरीके बदल गए, मशीनें बदल गई, इक्विपमेंट्स बदल गए, तो एक नया विजन है। तो इन सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए जो शरीर आपको मिले हैं ये बहुत कीमती है। सरकार करोड़ों रुपए देके मेडिकल कॉलेज तो खोल सकती है, आपके लिए महंगी मशीनें तो ला सकती है, लेकिन जब शरीर की बात आती है तो सरकार कहाँ से लाएगी? है कोई फैक्ट्री? कोई फैक्ट्री उसके पास? कोई फैक्ट्री नहीं है। शरीर तो कहीं बनते नहीं कि खरीद लिए जाएं। वहाँ आके सरकार रुक जाती है। 2019 में जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मेरी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि हम एम्स गोरखपुर में खोल रहे हैं, एम्स रायबरेली में खोल रहे हैं, और इतना हमने उस पर लगा दिया है, लेकिन शरीर के लिए हमें आपकी तरफ देखना पड़ रहा है, तो हमारी कुछ मदद कीजिए। ये राजा रंक से मांग रहा है। कभी कभी उल्टा हो जाता है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और मैं एक सामान्य व्यक्ति,
लेकिन मांगना पड़ रहा है। कभी कभी नाव जो है नदी में और कभी कभी नदी नाव में भी हो सकती है, तो उनको कहना पड़ा ये कठिनाई। मैंने उनकी बात का मान रखा और 4 शरीर एम्स गोरखपुर को और 4 एम्स रायबरेली को। ये आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमारे घर में कहीं थैले में टंगे, हमने निकाले और एम्बुलेंस में रखे और चले गए। पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, पूरा इंतज़ाम करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, बताना होता है कि वहाँ भी ज़रूरत है, वहाँ भी बच्चे हैं। और 8.5 घंटे का रास्ता है गोरखपुर का, 350 किलोमीटर है। दिल्ली थोड़ी दूर, जैसे दिल्ली जाते हैं तो जरा सा पीछे, तो उतनी दूर तक एम्बुलेंस से जाना और साथ में हमको भी जाना है, क्योंकि शरीर जा रहा है, उसके सम्मान की रक्षा के लिए हम भी साथ में हों। वहाँ कैसे उसको दान करना है, क्या करना है, सब बताते हैं उनको। तो इस तरह से किया है। तो कभी कभी ये जो होता है ना, भगवान को भी भक्तों से काम पड़े तो पड़ जाता है कभी कभी। तो ये ऐसी चीज़ है। और मैं एक बात कह के आपसे बात ख़त्म करूँगा कि एम्स गोरखपुर से एक बार मेरे पास फ़ोन आया, शुरुआत की बात थी, नए हम भी नए थे, वो भी हमें नहीं जानते थे, हम भी उनको। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ कराएंगे, उसके कितने दिन बाद आप हमें शरीर दे देंगे। तो आमतौर से मैं क्रोधित नहीं होता हूँ, अब गुस्सा मेरा बहुत कम हो गया है सामाजिक जीवन, लेकिन मुझे थोड़ा क्रोध आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम कोई फैक्ट्री थोड़ी चला रहे हैं कि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 7 दिन बाद आपको बॉडी ला के दे देंगे। इसको तो कोई नहीं कह सकता। हो सकता है कल बॉडी मिल जाए, हो सकता है कि 3 महीने बाद मिले। ये हम कैसे कह सकते हैं कि किसका निधन कब होगा। शरीर तो अचानक मिलने वाली चीज़ है ना, लेकिन संयोग से अगले हफ्ते ही शरीर मिला तो मैंने उनको दिया। तो कई बार ऐसे सवाल भी लोगों के मन में आते हैं, कितने दिन बाद आप हमें शरीर दे देंगे। कोई हम फैक्ट्री नहीं चला रहे हैं, हमने लोगों को तैयार किया है, लोगों के मानस को बदला है, लोगों की सोच को बदला है, सोच की धारा को बदला है और आस्था के उस जाल को तोड़ा है जिसको हम लोग आडंबर कहते हैं। उस जाल को तोड़ने में हमें 20 साल लगे, 20 साल की मेहनत। और केवल 20 साल ही नहीं लगे हैं, 20 साल ही नहीं लगे हैं, इसमें हमारी पूरी ज़िंदगी चली गई। हमारा मेडिकल का व्यापार भी हमने इसके लिए रोक दिया है, अपने दूसरे व्यवसाय थे उसको भी छोड़ दिया, ये सब छोड़ना पड़ा। अब 55 वर्ष की उम्र में आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इस अभियान के नाम है, तो बाकी की ज़िंदगी भी इस अभियान के नाम चली जाएगी। लेकिन काम तो पूरा होगा ना, एक ज़िंदगी में एक काम पूरा करना चाहिए। हम हिंदू लोग ये मानते हैं कि अगला जन्म फिर मिलेगा, तो जब अगला जन्म मिलेगा तो करोड़पति बनेंगे। इस जन्म में एक अभियान को पूरे मन से पूरा करेंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सुमित्रा मैम का, आचार्य महोदय का और आप सारे लोग। मैंने आदरणीय मैम से और प्राचार्य महोदय से अनुमति ले ली है। 19 दिसंबर सोमवार को शाम को 3 बजे है ना, LT3 में उन लोगों को सम्मानित करेंगे, उन परिवारों को जिनके यहाँ से शरीर आए हैं। आप सब वहाँ पर उपस्थित होना चाहेंगे, आपको मिलवाना चाहेंगे। प्रमोद साहब मौजूद रहेंगे, मुझे लगता है सर आप रहेंगे। तो ये 19 दिसंबर सोमवार को 3 बजे है। आपके शहर के जिलाधिकारी महोदय उसमें उपस्थित रहेंगे और वो सम्मानित करेंगे। तो आप सारे लोग उसमें उपस्थित होंगे सोमवार को 3 बजे LT3 में, और तब हम लोग उन परिवारों से भेंट करेंगे जहाँ से शरीर आते हैं। आपने मुझे यहाँ समय दिया, आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस महाविद्यालय को प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे एक नई राह दिखाई है और नया करियर दिया है, नया नाम दिया है और पूरे प्रदेश में एक मुकाम हासिल करने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझको क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी पत्नी के बारे में बताना भूल गया, क्योंकि घर तो हमको भी लौटना है ना, तो ये मेरे साथ बराबर लगी रहती है। और बहुत सारे शरीर इसने अपने कंधे पर रखकर यहाँ मेडिकल कॉलेज में ऊपर पहुँचाए हैं, इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आ गए। तो इसका आभार व्यक्त करना जरूरी था, क्योंकि शाम को हमें भी घर लौट के जाना है। अभी आपकी शादी नहीं हुई, नहीं आप नहीं समझ सकते इस बात को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप छात्रों को मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को एक शीट दे रखी है ना कैटेगरी कोड की, उसमें अपना नाम लिखिए, ठीक है, पैरा लिखिए और उसमें जो भी आपका रोल नंबर अभी आपको रोल नंबर लिखिए। और बैक ऑफ द शीट पर आपको जो भी आपको लग रहा है इस ओकेशन पर और आपने ये जो कैटेगरी देखा है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस, आप पहले ये ऐसा लिख लीजिए।
With the permission of the sir, I have taken a few of the students who would like to present their views. उनको अपना कैसा अनुभव हो रहा है वो यहाँ पर आकर अपना विचार शेयर कर सकते हैं. तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमको वॉलंटियर पहले भी किया है. महक. Good afternoon, respected principal sir, eminent guests, and my dear teachers. On the occasion of this cadaveric oath, I wrote a letter to my first teacher, that is the cadaver. Dear sir, you not only were, but are the epitome of heartfulness, courage, and vigor. In spite of living in a society full of religion, ritual, and casteism, you came up with the greatest idea and contribution that most of us hardly can even think of. You have given us a major reason to push our limits up to an unimaginable extent so that we can justify and honor the sacrifice, your contribution to our careers and our society. The difference between life and death is just of a breath. And today, I am here to honor and bestow my sincere thanks to people who even after their last breath are ready to give so many lives a new meaning. You know what? Every normal demise has condolences. Everybody gets some sympathy, but there are really few who get more gratitude than just condolences. And you all are among them. Once again, I wish you, I expect my sincere thanks and gratitude, and we and whole medical fraternity are highly indebted by your greatest sacrifice. Thank you. Taking the program further, I would like to call Pooja Gupta to present her speech and views over this occasion. A very good afternoon to Honorable Principal and respected teachers and my dear friends who is present here. My name is Pooja Gupta. I am standing here in front of you all to share my opinion on this cadaveric ceremony. Cadaveric studies, first of all, what I feel about is it sets an example where death teaches the living. Doctors play a pivotal role in building the society, no doubt. They are true lifelines of general community. But this their very contribution would not have been possible in such a refined way as today but for anatomical studies that can only be aided by cadaveric dissection. And of course, those kind and rational-minded families who made their decisions by going against their welling up emotions and social and cultural beliefs. My heart is already acknowledging the foremost gratefulness to the families who, being so benevolent and courageous, are letting us gain the knowledge about human body in very exhilarating and detailed way. Anatomy forms a firm foundation of whole art of medicine and introduces us to the scientific reality of human body. And lastly, I would like to share something what cadaver is beckoning to us, what is trying to tell to us. गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ मैं. गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ मैं. तुम मुझे मुर्दा समझ रहे हो, अभी मरा नहीं हूँ मैं. If not as a skeleton, as loose bones, I am in your bags and in your hostel rooms. At times, I am on your beds too. Oh, what a promotion to heaven from hell. Cadaver is not a mere dead body. It is alive in the hearts of students and renowned successful doctors who have dissected it for study purposes, and in the hearts of professors who with their courtesy and immense knowledge are creating experts by serving their students. चाहे कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, मुस्लिम हो, सब में डेथ फ्यूनरल जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा ही रोल होता है डेथ फ्यूनरल का. अपने लव्ड वंस को वो क्रिमेट करना चाहते हैं. लेकिन यहाँ पे हम जब देखते हैं कैडेवर्स को ऐसे पड़े हुए, हम ये सोचते हैं, हमारा हार्ट एकदम दर्द से भर जाता है कि उन्हें तो एक लास्ट चांस भी नहीं मिला अपने लव्ड वंस को क्रिमेट करने का. इससे बड़ा सेक्रीफाइस मेरी नज़र में और कुछ भी नहीं हो सकता.